Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about bones in skull, hindbone, bones in vertebral column and ribs and sternum for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the bones in human body and discuss the bone in skull, that is hide bone, and also discuss the bones present in trunk region, that is vertebral column and ribs and sternum. Bones in human body. In our previous lecture we have discussed the bones present in cranium, face and ear, that is 8 bones are present in cranium region, 14 bones are present in facial bones, while 6 bones are present in ear. Now this is the bone, that is hide bone, which is present in skull region, that is a hide bone. It is a single bone, and sometimes this bone is also considered in neck region. In our book this bone is present in our skull region, so we consider this bone in our skull region. And today we have to discuss this hide bone and also discuss the bones present in trunk region, that is vertebral column, chest bone and rib. In vertebral column there is 26 bones, chest bone, that is sternum, 1 bone, and in ribs there are 24 bones. Today we have to discuss the hide bone and bones present in trunk region. Now first we discuss the hide bone that is present in our skull region. This is the small bone which is present at the base of the tongue. This is a single bone. They have no articulate with any other bone present in the skull, and they are present below the mandibles and upper side of the larynx, and this bone is called hide bone. This is a small single bone. This is the hide bone and it cannot be articulated or attached with any bone with the skull. ये जो बोन प्रेजेंट है, जो ये हाइड बोन है, ये किसी के साथ भी आर्टिकुलेट नहीं हो रही, किसी से अटैच नहीं हो रही, जो हेड रीजन में बोन्स मौजूद हैं. और ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास वर्टिबल, ये नेक रीजन आपके पास मौजूद है. इधर सर्विकल वर्टिब्रा ये मौजूद हैं. ये जो है इधर जो है ये आपके पास हाइड बोन मौजूद होती है. तो समटाइम्स इसको बोन्स को नेक रीजन में भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो ये बोन है इसको हम किधर कंसीडर करेंगे, बोन्स इन स्कल्स में. तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्मॉल बोन है, इसको हम किधर कंसीडर करें, स्कल इन बोन्स में. और ये सिंगल बोन है और स्मॉल बोन मौजूद है हमारे स्कल में. और ये क्या बनते हैं, जो है बेस ऑफ द टंग, जो लोअर हिस्सा है, यहाँ पे टंग मौजूद है, इधर की जो इसका लोअर हिस्सा है, इधर क्या होता है, ये बोन मौजूद है. और ये देखें, ये सर्विकल रीजन मौजूद है, ये नेक रीजन मौजूद है, और इधर ये क्या है, बोन मौजूद है. बट वी हैव कंसीडर्ड दिस बोन इन स्कल रीजन. नाउ we have to discuss about the vertebral column. The vertebral column consists of small bones called vertebra. These vertebra present in cervical region, thoracic region, lumbar region and hip region or pelvis region. The vertebra present on cervical region, that is neck region, it consists of 7 vertebra. So we represent it as C1, C2, C3 and so on C7. While the vertebra present on thoracic region, that is the chest cavity, these bones represent as
T1, T2, T3, T4 and so on T12. Thoracic region, basically the chest cavity region. Now the vertebrae present on lumbar region, that is the region behind the belly, these are called lumbar region, and these vertebrae represent as L1, L2, L3, L4 and L5, while the vertebrae present on hip region are called pelvis vertebra, and they are 9 in number. These vertebrae fuse and form two structures called sacrum and coccyx. अब आपके पास ये तो वर्टिब्रा की तरतीब थी, और ये सारे वर्टिब्रा ज्वाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम। और ये कितनी नंबर है? 33 नंबर है। 33 नंबर में से हमने ये देखा ये सिंगल वर्टिब्रास मौजूद हैं जिनको हमने यू नंबर दे दिए। हिप रीजन के अंदर आपके पास 9 वर्टिब्रा जो मौजूद हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड होने की वजह से वो दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हमने एक को हमने बोला सैक्रम और एक को कॉक्सी हमने कहा। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट नहीं होता, ये रोड लाइक नहीं होता, बल्कि बेंड्स या कर्वेचर मौजूद होते हैं। जहाँ पे बेंड्स और कर्वेचर मौजूद हैं उन वो कौन से रीजन हैं? आपको थोरेसिक 5 रीजन पे, थोरेसिक 6 रीजन में, और इसी तरह लुम्बर 3 और लुम्बर 4 रीजन पे बेंड्स मौजूद हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये तो किसके बारे में था? वर्टिब्रा कॉलम के बारे में, कि इनमें वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे प्रेजेंट है। और ये क्यों रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता? बिकॉज दे हैव द कर्वेचर्स इन 4 रीजन। वो कौन से रीजन हैं? थोरेसिक 5, थोरेसिक 6, लुम्बर 3 एंड लुम्बर 4 वर्टिब्रा पे आपके पास बेंड्स कर्वेचर मौजूद हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास जो नेक रीजन में वर्टिब्रा मौजूद हैं वो आपके पास सर्विकल वर्टिब्रा हैं। थोरेसिक रीजन में जो मौजूद हैं वो आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रा हैं। जो लुम्बर रीजन में मौजूद है बिहाइंड द बेली जो मौजूद हैं ये आपके पास लुम्बर वर्टिब्रा हैं। अब आप जरा ये देखें, ये आपके पास फ्यूज्ड है। ये हिप रीजन में जो मौजूद है जो 9 वर्टिब्रा हैं, 5 जो हैं वर्टिब्रा सैक्रम बना रहे हैं। जो 5 वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज्ड हुए हैं और आपके पास क्या बना रहे हैं? सैक्रम। और जो 4 वर्टिब्रा हैं वो आपस में फ्यूज्ड हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, फ्यूज्ड हुए हैं, और वो क्या स्ट्रक्चर बना रही हैं? आपके पास कॉक्सी। अगर हम देखें तो अब हमारे पास टोटल वर्टिब्रा कितने बनते हैं? अगर टोटल वर्टिब्रा की बात करें तो 7 और 12 आपके पास 19 हो गए। 19 हो गए। इसके बाद 5 इसमें आप प्लस कर दें तो ये कितने हो गए? 24। और इसी तरह आप इस पे 5 जमा कर दें 24 में तो 29, 4 जमा करें तो 33। तो ये तो आपके पास वर्टिब्रा हो गए। अगर हम बात करें बोन्स की, बोन्स कितनी होगी आपके पास इसके अंदर? ये जो एक वर्टिब्रा है वो हमारे पास एक बोन है। तो अगर हम देखें सर्विकल रीजन में 7 बोन्स मौजूद हैं, थोरेसिक रीजन में 12 बोन्स मौजूद हैं, तो 7 और 12 हमारे पास कितनी होगी? 19 बोन्स। लुम्बर रीजन में हमारे पास 5 बोन्स मौजूद हैं, तो आपके पास ये कितनी होगी? 19 और 5 24 बोन्स। अब सैक्रम में जो क्या है 5 वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक बोन बना रही है। 5 वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक बोन बना रहे हैं। तो हम इसको अगर 1 को प्लस करते हैं तो 24 + 1 25 हो जाएंगी। और इधर 4 वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक और बोन बना रहे हैं जिसे कॉक्सी कहते हैं। तो एक और हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास 26 बोन्स हो जाएंगी। तो हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम में बात की जाए तो वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट है? 33। और ये नंबर ऑफ बोन्स कितनी बना रही हैं? 26 नंबर ऑफ बोन्स बना रही हैं। तो ये तो हमने आज डिस्कस किया है वर्टिब्रा कॉलम के बारे में। और ये क्यों रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता? बिकॉज दे हैव द कर्वेचर इन द
वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से क्या है ये रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। अब हम आगे रिब एंड स्टर्नम की बात करते हैं। रिब्स जो हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या हैं मौजूद हैं, जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ क्या कर रहे हैं आर्टिकुलेट करेंगे। 7 पेयर जो हैं डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम है, जो ये आपके पास 7 पेयर डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम के साथ, उनको स्टर्नम आपकी चेस्ट बोन है, जिसे चेस्ट बोन कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे आप ट्रू रिब्स 3 पेयर्स फ्यूज्ड हैं, इसलिए जो आपस में वो फ्यूज ना भी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलेंगे आप फॉल्स रिब्स। और जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है और बल्कि वो फ्लोट कर रही हैं, इस वजह से उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। ये डायग्राम से हम देखते हैं। आपके पास ये जो पेयर्स ये देखें ये रिब्स की पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, और ये क्या है आपके साथ स्टर्नम बोन्स के साथ जो अटैच्ड है, जो स्टर्नम बोन्स के साथ अटैच हुई हैं, ये 7 पेयर्स अटैच हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। और आप ये देखिए ये जो 3 रिब्स हैं 8, 9, 10 ये क्या हुई हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हुई हुई, ये आपस में फ्यूज्ड हुई हैं। 8, 9 और 10 अटैच्ड नहीं हुई स्टर्नम के साथ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। और ये आखिरी ये जो आप देख रहे हैं पीछे ये जो आपको नज़र आ रही है ये जो 2 रिब्स हैं, ये जो 2 रिब्स हैं ये जो हैं अटैच नहीं है, ये फ्री हैं, इस वजह से दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। और ये भी पेयर फॉर्म में मौजूद हैं, ये भी पेयर फॉर्म में मौजूद हैं और ये भी पेयर फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये इस तरह आपके पास जो रिब्स हैं वो आपकी बॉडी में मौजूद हैं, जो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ वो ट्रू रिब्स हैं, जो आपस में फ्यूज्ड होती हैं वो फॉल्स रिब्स हैं, जो किसी के साथ अटैच नहीं है, जो फ्रीली मौजूद हैं वो आपके पास फ्लोटिंग रिब्स कहलाएंगी। तो ये रिब्स के बारे में था। और स्टर्नम आपके पास ये जो चेस्ट बोन है इसको आप क्या कहते हैं स्टर्नम। तो ये तो आपको था ये रिब की नोट में थी कि रिब और स्टर्नम हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट हैं। तो आज हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में हाइड बोन को, फिर इसके बाद हमने स्टडी किया जो है बोन्स प्रेजेंट इन ट्रंक रीजन, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम और रिब एंड स्टर्नम को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम अब हम जो है अपेंडिजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।